Hello students, today I am going to take few higher order thinking skill questions from your textbook of class 12 from the chapter inverse trigonometric functions. The questions are already written here where two different conditions are given. This is minus 1 upon root 2 to 1 upon root 2. The other one is from minus 1 to minus 1 upon root 2. There are two different cases, but the question is same. I have to check what is sine inverse of 2x root of 1 minus x square. मैं एक बार पहले इसको समझाता हूँ कि हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर ये चेक किया था कि अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वी कैन गो विद सम specific substitutions are given. We can take it as a sin theta or a cos theta. Both will do. So for this particular question, as a is missing here, we are having 1. तो ये हमारे clear indication है that if I go with this particular question, which is written as sin inverse 2x root of 1 minus x square. So here I am going to substitute. Let x be equal to sin theta. हम लोग ये पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. अब मैंने अगर ये सब्स्टिट्यूशन किया तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin theta root of 1 minus sin square theta, which becomes 2 sin theta, and this is cos square theta with root. So this becomes sin inverse 2 sin theta and cos theta, जो हमारा एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से हम लोगों ने पढ़ा है sin 2 थीटा. देखो कई बार लोग सिंपली कहते हैं sin इनवर्स और sin काट दो बचा 2 थीटा है, तो हमारे 99% में ये वाला आंसर नहीं के आ जाते हैं, बट हमें यहाँ रुकना होगा. We know that there is a condition given here that sin inverse or sin x will only give x if x belongs to minus 1 upon 2 से plus 1 upon 2 तक अगर ये x है तो ही ऐसा होगा. तो हम लोग पहले परमिशन चेक करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया क्या था. The condition here it is given x was from minus 1 upon root 2 to 1 upon root 2. As we have taken x as sin theta, I am going to put sin theta and going to check. ये क्या होता है? It is at sin pi by 4 and minus 1 upon root 2 is at sin minus pi by 4. Sin is an increasing function. When you get rid of the sin, theta जो है वो हमारा minus pi by 4 से plus pi by 4 तक आया. और ये पूछ रहे हैं 2 theta. So let's multiply by 2. So this becomes pi by 2. This becomes 2 theta and this becomes pi by 2. क्या ये हमारी रेंज है? हाँ है. तो अगर ये कंडीशन अपने पास आती है, so we can get rid of this. We will be getting at 2 theta. 2 theta कितना है? यहाँ से theta की वैल्यू आप निकाल सकते हो. This sin will come this side. This becomes sin inverse x. बड़ा आसान क्वेश्चन हुआ. But when we go to यानी इस कैटेगरी से हम लोगों ने ये हो गया हमारा पार्ट 1. So the other one is the other case. This is something different. ये कहते हैं x कैसा है? x है -1 से -1 upon root 2 तक. हमने यहाँ पे भी वही काम किया है. We have taken this one as sin theta. ये हो गया हमारे पास sin minus pi by 2 और ये हो जाएगा sin minus pi by 4. Again sin increasing function है, तो minus pi by 2 से theta जो है वो इस कैटेगरी में आ गया. But we want 2 theta as here it is written 2 theta. हमने इसको डबल किया तो ये हो गया pi by 4. Sorry, only pi. This becomes 2 theta and this becomes minus pi by 2. ये हमारी रेंज से कम है. हमारी रेंज क्या बताती है? ये रेंज है minus pi by 2 to plus pi by 2. We are on this side. So when we are on this side, we have to take this one to this particular range. So we'll be going to add. अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ? Pi add कर रहा हूँ. So I am adding pi. This becomes pi plus 2 theta और ये हो जाएगा pi minus pi by 2. ये बन गया 0 और ये हो गया pi plus 2 theta and this is pi by 2. तो ये हमारी रेंज में आ चुका है. हमारी रेंज minus pi by 2 से plus pi by 2 है. ये 0 से pi by 2 में it is well inside the root, but we have to get this particular angle. तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं. जब हम लोग pi plus 2 theta लिखते हैं तो क्या होता है आंसर? minus sin 2 theta बनता है. इसका मतलब in place of sin 2 theta I can write keeping this minus on this side. ये आप लोगों को आसान से याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं. तो यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है सेकंड कैटेगरी में कुछ अलग बन जाएगा. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे sin inverse In place of sin 2 theta, I am going to put minus sin
पाई प्लस 2 थीटा। साइन इनवर्स में माइनस आता है तो वी आर गोइंग टू हैव दिस माइनस आउटसाइड, दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई प्लस 2 थीटा। ये हमारी रेंज में है तो साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन रिमूव। हमारे पास पाई प्लस 2 थीटा ये बचेगा, यानी आंसर आया माइनस पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्मेट था ये। Clear? So I think this part is clear to you. There are two different. These two things are very important. We have to take care of these things. This will give you a bit higher thinking level. So now I am going to take the second one. In the same way, we can take the second one also. Second category, as we can see, it is clearly giving you a hint that we are having cos 2 theta. The formula is 2 cos square theta minus 1. तो साफ पता लग रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में जहां cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 है, हमें यहां x की जगह cos थीटा लेना होगा। अब अगर cos थीटा लेना है तो एक बार ट्राई करते हैं। तो हमारी टर्म क्या बन गई? ये बन गई cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज अगेन cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब हुआ क्या? ये कैंसिल हो जाना चाहिए, बट हम ये भी जानते हैं दैट cos इनवर्स ऑफ x के अंदर अगर मैं cos x लिख देता हूं, ये x तभी आएगा when x belongs to 0 to pi. It's again a closed interval from 0 to pi. हम चेक करते हैं क्या ऐसा वाकई हो रहा है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? x was greater than 0, less than or equal to 1. So here we have taken cos theta. 1 कब होता है? आप जानते हो, ये होता है cos 0 पे, और ये 0 कब होता है? ये होता है cos pi by 2 पे। Cos pi by 2 is 0 and cos 0 is 1. cos is a decreasing function। मैं decreasing क्यों बोल रहा हूं? 0 से लेके पाई तक आप देखो cos का फंक्शन डिक्रीज करता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? when you get rid of cos, ये साइन चेंज हो जाएगा। we are having now the theta is from 0 to 2 pi। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2 थीटा। अपना काम आ गया, ये तो भी रेंज में है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें काम कर सकते हैं। we can write this one as this will get cancelled as it is there in the range, it is 2 theta 2 cos inverse x हमारा आंसर है। but it is not the case with the part number 2। so this is part 1, I am taking part 2 now। पार्ट 2 के अंदर कंडीशन अलग है। पार्ट 2 की कंडीशन क्या दे रखी है? इसकी कंडीशन है x कैसा है? x है -1 से 0 के बीच। तो हम लोग चेक करते हैं भाई, हमने x को रखा था cos थीटा 0 कब होता है? cos pi by 2 पे होता है। -1 कब होता है? cos pi पे होता है। क्लियर? cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ही cos हटाओगे तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास pi, ये हो जाएगा pi by 2। अब ये कैटेगरी क्या बताती है? अगेन 2 थीटा, I will multiply by 2, this becomes 2 pi and 2 theta, this becomes pi। ये हमारी रेंज से आगे चला गया। देखो ये रेंज क्या थी? ये रेंज थी 0 से pi। अब ये आगे चला गया। अगर आगे चला गया तो इसको पीछे लाओ। पीछे कैसे लाएंगे? या तो pi माइनस करेंगे, pi से इसको माइनस करेंगे। So I am subtracting pi from this। So this is 2 pi minus pi, 2 theta minus pi, and this becomes pi minus pi। तो ये आ गया हमारे पास pi और ये एंगल है 2 theta minus pi, ठीक है। और ये कैटेगरी हो गई हमारे पास 0। इसका माइनस एडजस्ट करोगे आप तो भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो हमारे पास दो कैटेगरी हैं। हम पाई आगे लिखना चाहते हैं तो भी आपको एक तरीका बता सकता हूं, वरना ये वाला एंगल कैसे लाएंगे? अब ये वाला चेक करते हैं। अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेता हूं, अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट हम जानते हैं cos of 2 theta minus pi। इसको हम लोग बना सकते हैं cos minus common pi minus 2 theta। This becomes cos will absorb this minus sign, it becomes pi minus 2 theta। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? pi minus 2 theta, this becomes minus of cos 2 theta। That means in place of cos 2 theta I can write minus of cos 2 theta minus pi। ये ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हो, जो आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी हमारे पास क्या बना? ये आ गया cos इनवर्स cos 2 theta की जगह क्या लगाया? माइनस ऑफ cos 2 theta minus pi। अब cos इनवर्स में माइनस आता है तो हम लिखते हैं पाई माइनस, ये जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा माइनस पाई। अब ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई माइनस, ये कितना बना? 2 थीटा माइनस पाई। व्हेन यू ओपन दिस माइनस साइन, दिस बिकम्स पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई, इट बिकम्स 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये देखो आपका आंसर थीटा क्या है? थीटा है cos इनवर्स x। तो बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है
कि कंडीशन कौन सी दे रखी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे बेसिक फॉर्मूले में पाई का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बेसिक लेवल से हायर पे ले जाते हैं। सो डू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन so that we can get many more different type of results are there जो आप लोग अलग-अलग क्वेश्चन पे चेक कर सकते हो। So keep practicing and thank you for watching the video.